Hello, dear students. Hope you have seen the yesterday's video. Did you like it? I'm sure you might have liked it. Now, children, in the last video, what we have done important was, yes, you know it very well. It is Sial and it is Seema. Okay. पूछूं फिर से आपसे what is Sial and what is Seema? No, I know you all are very brilliant and you know what is Sial and Seema. I explained it also nicely, na? Yeah, I know that. I am a very good teacher. No, just for fun, children, just to change your mood. Sial, as you know, on the earth crust, the minerals that are available, mineral constituent is Sial, and then Seema is on the ocean. Constituents are available at both the places. Got it? Innermost layer, you know, 3500 kilometers. मतलब अभी ये ट्राई टू अंडरस्टैंड कि दिस लैंडफॉर्म दैट यू आर सीइंग ये सिर्फ ऊपर का पार्ट है. ओके चिल्ड्रन. एंड क्रस्ट के नीचे में ना मैंटल इज देयर. ये ऊपर वाला फिगर दिखाती हूँ आपको. या पहले तो क्रस्ट है और क्रस्ट के नीचे में मैंटल है. अभी हमने सिर्फ क्रस्ट के बारे में पढ़ा है, which is made up of Sial and Seema. Okay, children. Now what happens? Innermost layer of the earth is 3500 kilometers. Now let me show you one thing. This is 2900 and this is 3500. ये थोड़ा बाहर निकल गया है, ये यहीं तक है. I mean till this place only. Till here we have 3500 kilometer. Got it? And उसमें क्या क्या मिनरल्स मिलते हैं हमको? Innermost layer that is there, that's mantle below the crust, and it has got major minerals that are there is nickel and ferrous. निकल का हम पहला वर्ड ले लेते हैं. पहला 2 letters will take an I. Ni. Fe. Fe. Ferrous is iron and nickel, Ni is nickel. So nickel and ferrous together make a knife. Haha, you know children what is a knife. ये चक्कू. This is the mineral wala knife which is found inside the earth, very much below the earth. बहुत ही अंदर के तरफ हमको मिलता है and it is very heated. बहुत गर्म होता है बेटा ये. एंड आप देख रहे हो अर्थ के ऊपर में, जब ऊपर में इतनी गर्मी होती है तो यू कैन वेरी वेल अंडरस्टैंड. जस्ट अ मिनट चिल्ड्रन. जब ऊपर इतनी गर्मी होती है तो आपको ये यू कैन वेरी वेल अंडरस्टैंड कि अंदर में कितनी गर्मी होती होगी. सेंट्रल कोर हैज वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर बहुत सारा होता है. नाउ व्हाट हैपेंड. अभी क्रस्ट जो है हमारा सबसे ऊपर वाला पार्ट. ओके. क्रस्ट इज मेड अप ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ रॉक्स. बहुत सारे रॉक्स मिलते हैं इसमें. एंड एनी नेचुरल मास ऑफ मिनरल मैटर, जैसे कोई भी एनी नेचुरल मास मीन्स बहुत बड़ा सा एरिया, बहुत बड़ा सा रॉक पीस है. मास, ठीक है, थिंग्स दैट ऑक्यूपाई स्पेस, दैट इज कॉल्ड एज ऑफ मिनरल मैटर. इट इज कॉल्ड एज अ रॉक. अर्थ के रॉक आपको कहाँ मिलता है? चट्टाने. ठीक है, हिंदी में चिल्ड्रन लेट्स टॉक इन हिंदी ऑल्सो. ऐसा कुछ नहीं है कि आई विल टेल इन इंग्लिश ओनली. To make it easier for you, I'll be giving you some words in Hindi as well. Got it? So the earth, the crust forms
1% ऑफ वॉल्यूम ऑफ अर्थ। क्रस्ट जो आपने देखा ना ऊपर में, वेयर वी हैव द सियाल एंड द सीमा, वो ओनली 1% इज देयर। बाकी सारा, all the major minerals and all the major items are there inside the earth. Got it, children? So 1% of volume of earth and 84% consist of mantle and 15% makes the core. अभी फिर से बेटा वो वाला डायग्राम देखना पड़ेगा। Radius of the earth is 6,371 kilometers. Children, this is a very important thing that you need to understand. I hope you all know that very well. आपको पता है what is a radius? Yes, ये जो है this is 6,371 पूरा नीचे तक। अभी ये कैसे पता लगाया? Yes children, you know there are geologists, then there are scientists who have found out all these things, and these matters that are there, these minerals that are there, that really helps us in making a lot of सारी चीज़ें हमारे इंडिया में नहीं, ऑन आवर अर्थ हम बहुत सारा कंस्ट्रक्शन वर्क है, मेनी थिंग्स आर देयर जिसके लिए हम इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। ये जितनी भी चीज़ें यहाँ मिलती हैं ना, टिल इंटरनली खुदाई कर करके हम खोद के अंदर से निकालते हैं, वी गेट कोल, डायमंड, बहुत सारी चीज़ें, मेनी थिंग्स वी फाइंड इनसाइड। एंड क्रस्ट आप देख रहे हो कितना कम है ना, यहाँ पे यू कैन सी दिस इज ओनली 1%। गॉट इट? मैंटल कितना है? मैंटल इज 84%। और ये कोर कितना है? 15%। कितना हो गया टोटल? 84 प्लस 15 प्लस 1 इज टोटल 100%। ये सब नंबर्स ये सब याद रखना चाहिए ना बेटा, यू शुड रिमेंबर ऑल दीज नंबर्स। आगे चल के यू नो दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स विच मेक योर आपके क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। दीज आर जीके क्वेश्चंस, इट कुड बी आस्क्ड एनीवेयर। कल की डेट में आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में बैठेंगे तो हो सकता है वहाँ पे ये चीज़ें पूछी जाए, सो यू कैन ईजिली मेंशन ऑल दीज इंफॉर्मेशंस। गॉट इट? तो अभी हम क्या बातें कर रहे थे बेटा? वी वर टॉकिंग अबाउट रॉक एंड रॉक्स। यू नो मेनी काइंड ऑफ रॉक्स आर फाउंड, हर तरीके के होते हैं, डिफरेंट कलर, साइज, टेक्सचर, सब तरीके के रॉक्स आपको मिलेंगे। एंड 3 मेजर रॉक्स दैट आर देयर, दैट इज इग्नियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक। सो इग्नियस इज देयर। अब ये बेटा ये तो नाम कुछ ऐसे हैं, सम नेम्स आर देयर बच्चे दैट यू नीड टू रिमेंबर। ये सारे नाम आपको याद करने पड़ेंगे एंड आई नो यू कैन इजीली डू इट। इट्स वेरी सिंपल। इग्नियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो क्या होता है, अभी ये रॉक कैसे बनते हैं? रॉक्स चिल्ड्रन, हाउ इट इज मेड? जब मॉल्टेन मैग्मा, अभी तो आई थिंक बेटा यू might have read about volcano in class 6 में आपने वोल्केनो पढ़ा है। यस, अंदर से जब बहुत सारा हीटेड मटेरियल, ऑल दीज मिनरल्स, नाइफ वाला जो मिनरल्स है, निकल है, फेरस है एंड सिलिका इज देयर, एल्यूमिनियम इज देयर, ये सब बाहर आके liquid material when it comes out and it settles the earth surface और एकदम solidify हो जाता है, solid बन जाता है, then it is called as, क्या कहते हैं इसको? मैग्मा। मैग्मा कूल्स, तब ये क्या होता है? रॉक हो जाता है। एंड रॉक नाउ thus it is formed। अभी सबसे पहले जो रॉक, मतलब जब मॉल्टेन मैग्मा निकल रहा है, ये जो मॉल्टेन रॉक्स जो बाहर आ रहे हैं, पहले रॉक क्या होता है, अभी ना सॉलिड हो गए हैं, पहले रॉक जब अंदर से
के अंदर, इट इज इन द लिक्विड फॉर्म. सोचो ये इतने सारे जो रॉक्स हैं ये सब सॉलिड सॉलिड फॉर्म सामने आते हैं, लेकिन धरती के अंदर क्या होता है, इट इज ऑल इन लिक्विड फॉर्म. तो इट इज मॉल्टेन मैग्मा, ये कूल हो जाता है, और ये कूल होते ही जो रॉक फॉर्म होता है दैट इज कॉल्ड एज इग्नियस रॉक्स. इग्नियस रॉक्स को क्या और एक क्या नाम दिया गया है, इग्नियस रॉक्स को प्राइमरी रॉक्स. सो सपोज इफ आई आस्क यू क्वेश्चन व्हाट आर प्राइमरी रॉक्स, क्या बताओगे, igneous rocks. And what are igneous rocks? You will say primary rocks. No, it is not like that. आपको बताना है that after the earthquake, the magma that comes out, अंदर से जो liquid material बाहर आता है, वो जब सॉलिड हो जाता है, सॉलिड बनता है, तब उसको हम igneous कहते हैं, igneous rocks. और igneous rocks को ही हम क्या कहते हैं बेटा, प्राइमरी रॉक्स. और इग्नियस रॉक्स कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं. एक होता है इंट्रूसिव और एक होता है एक्सट्रूसिव. सॉरी, अरे देखो मैंने वो ही नहीं किया क्लिक. इंट्रूसिव रॉक्स एंड एक्सट्रूसिव रॉक्स. अब क्या है, इसका एक वो बना लो फ्लो चार्ट. अभी मैं आपको फ्लो चार्ट बना के दिखाती हूँ, ठीक है. आई लव मेकिंग फ्लो चार्ट्स. अलग अलग कलर यूज करेंगे, ठीक है, या इट विल लुक मोर कलरफुल. ओके, सबसे पहले आप यहाँ पे लिखो रॉक, ठीक है. अपनी अपनी कॉपी निकालो, टेक आउट योर नोटबुक्स. अभी दूसरे कलर से लिखेंगे, ठीक है. लेट्स स्टार्ट राइटिंग. कौन सा कलर लें, अभी पिंक कलर है ना, अभी रेड नहीं लेंगे, पिंक के बाद ग्रीन लेते हैं. ओके, नाउ रॉक्स में अभी हम किस रॉक के बारे में पढ़ रहे हैं, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रॉक्स. आई विल, बेटा मैं ऐसा करती हूँ ना, आई विल राइट ओनली द शॉर्ट फॉर्म. इग्नियस, सेडिमेंटेरी, सेडी, आईजी, एसिडियाई, क्या लिखेंगे यहाँ, मेटा. ओके, अच्छा है ना ये, या दिस इज गुड. मेटा. नाउ अब हम इग्नियस के बारे में पढ़ रहे हैं. एक और कलर लेते हैं ना, अभी दूसरा कलर लें. कौन सा कलर लें, लेट मी टेक पर्पल. इग्नियस 2 टाइप के हैं. आहा, बंद करना पड़ेगा. इग्नियस में कौन कौन से हैं, अच्छा इग्नियस ऑब्लिक यहाँ क्या कर देते हैं, इग्नियस आर ऑल्सो कॉल्ड एज प्राइमरी रॉक, है ना, प्राइमरी. या अब इग्नियस रॉक्स आर ऑफ 2 टाइप्स, एंड एक्सट्रूसिव. या तो हम कहाँ से शुरू किया हमने, चलो एक और कलर, अब दूसरा कलर लेते हैं. अब कौन सा कलर लेंगे, लेट्स टेक ग्रीन हो गया, पर्पल हो गया, रेड लेते हैं, है ना, लेट्स टेक रेड. या तो हमने पहले पढ़ा रॉक के बारे में. रॉक है, 3 टाइप्स ऑफ रॉक हैं, इग्नियस, सेडिमेंटेरी, मेटामॉर्फिक. फिर इग्नियस इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्राइमरी. और इग्नियस में फिर 2 टाइप्स हैं, इंट्रूसिव एंड एक्सट्रूसिव. ये पी समझ में आ गया सबको, आई हैव एक्सप्लेन्ड इट सो वेल, सो यू हैव अंडरस्टैंड. गुड गुड. सो अभी तो ये याद हो गया होगा ना. आप सोचो दैट वोल्केनो पूरा फट गया है, मीन्स पहाड़ों के ऊपर से वोल्केनो निकलता है ना, you know all that molten magma volcano has come out, and what has happened is कि volcano is coming out and is spreading all over, और इतने फोर्स से बाहर आता है ना कि आसपास की सारी चीजें जो हैं वो इससे ढक जाती हैं. everything is submerged. Got it? So lava is, अभी क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन पूछ सकते हैं, व्हाट इज लावा. Lava is fiery red molten magma.
गला हुआ, मतलब मॉल्टेन मतलब लिक्विड फॉर्म में, कमिंग आउट फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, एकदम अंदर से दिस लावा इज कमिंग आउट। बिकॉज आई टोल्ड यू, अभी आपने देखा उसमें इट इज सो हीटेड, and because of this heat the magma that is coming out, the rock, अंदर तो गर्मी होती है तो इट इज इन द लिक्विड फॉर्म, बाद में इट सॉलिडिफाइज द रॉक। उसके बाद जब ये अंदर का गर्मी जब बाहर आता है ना, लावा व्हेन इट कम्स ऑन द अर्थ सरफेस, ओके, इट कम्स अप एंड इट कूल्स डाउन एंड बिकम्स सॉलिड, एकदम ठंडा है, इट बिकम्स कूल्ड, इट रैपिडली कूल्स डाउन एंड बिकम्स सॉलिड। तो जब ये सॉलिड हो जाते हैं तो क्रस्ट के ऊपर जो रॉक फॉर्म होता है दैट इज कॉल्ड एज एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। मीन्स द लावा हैज कम आउट, अंदर की गर्मी के बाहर आया, उस समय इट वाज इन मॉल्टेन, बाहर आते ही इट सॉलिडिफाइज, बिल्कुल सॉलिड हो गया। तो बाहर आते ही जो मैग्मा, जो जो लिक्विड जो है वो सॉलिड हो गया है, दैट इज कॉल्ड एज एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स में, व्हाट ऑल मटेरियल इज फाउंड? तो इट इज़ वेरी ग्रेन, फाइन ग्रेन्ड स्ट्रक्चर, बहुत अच्छा मिनरल होता है ये, बेस्ट क्वालिटी, एकदम धरती के अंदर से बेस्ट क्वालिटी चीज़ बाहर आई है ना, सो इट इज़ फाइन ग्रेन्ड स्ट्रक्चर। जैसे कि इसमें से जो रॉक आते हैं ना, रॉक का भी डिफरेंट क्वालिटी होता है, वन ऑफ द रॉक्स इज कॉल्ड एज बसाल्ट, एंड डेक्कन प्लेट्यू क्या है, इज मेड अप ऑफ बसाल्ट रॉक। डेक्कन प्लेट्यू समझ रहे हो आप? आई एक्सप्लेन यू। अभी ये इंडिया का जो मैप है उसमें ये जो नीचे वाला पार्ट है ना, ये यहाँ पे श्रीलंका है, एंड दिस पार्ट दैट इज देयर, दिस होल पार्ट इज कॉल्ड एज डेक्कन। ठीक है, तो दिस पार्ट इज ऑल मेड अप ऑफ व्हाट? इट इज मेड अप ऑफ basalt. Deccan Plateau is made up of basalt rocks. कभी कभी क्या cools down, ये जो गला हुआ the magma that is there, it cools down deep inside the earth crust. मैग्मा बिल्कुल ठंडा हो जाता है, और ठंडा होते होते इट इज बिकमिंग कूल, अर्थ क्रस्ट के अंदर में इट इज बिकमिंग कूल। ओके, तो ये जो सॉलिड रॉक्स फॉर्म होते, जो लावा बाहर आ गया, बाहर आके बेटा जो लावा बना, गॉट इट, दैट लावा that is coming out and making in the forming a rock that is called as extrusive, बाहर आ गए। कुछ रॉक जो होते हैं ना, अंदर ही कभी कभी ठंडक मिल जाती है, तो वो जो बिल्कुल मॉल्टेन मटेरियल है वो सॉलिडिफाई हो जाता है अंदर ही अंदर, तो उसको क्या कहते हैं? इंट्रूसिव। तो ये धीरे धीरे कूल डाउन, गर्म, बिल्कुल आप देखो गर्म पानी होता है, गर्म पानी को ही ठंडा होने में कितना टाइम लग जाता है, तो ये जब कूल होता है तो इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम। अब इस तरह के जो रॉक होते हैं उसको क्या कहते हैं? इट इज कॉल्ड एज ग्रेनाइट। तो बाहर में जो रॉक मिलता है, मतलब आप आसमान के नीचे ऐसे आप कहीं घूम रहे हैं, नीचे में अगर कोई पत्थर है दैट इज बसाल्ट, एंड अर्थ क्रस्ट के अंदर में जो रॉक मिलता है दैट इज ग्रेनाइट। ओके चिल्ड्रन, तो अभी क्या है, साउथ इंडिया में डेक्कन रीजन, ग्राइंडिंग स्टोन्स, अभी ये जो बड़े बड़े रॉक होते हैं ना, इनको एकदम छोटा छोटा पीस में कर दिया जाता है और इसको पेस्ट बनाया जाता है, पाउडर बनाया जाता है ऑफ स्पाइसेस एंड ग्रेन्स आर मेड अप ऑफ ग्रेनाइट। तो पेस्ट है, पाउडर ऑफ स्पाइसेस, ग्रेन्स, ये सारा जो बनता है ये सारे ग्रेनाइट रॉक के ऊपर बनता है। ओके, रॉक्स क्या होता है, ये जो पत्थर होते हैं ना, कभी कभी वो ऊंची पहाड़ी नीचे आते
जाते हैं, कभी छोटा छोटा टुकड़ा बन जाता है. इट कम्स इनटू rolls down, cracks, hits each other, and are broken into small fragments. Big rock pieces, very big rock pieces, extrusive igneous rocks and intrusive. And small rock pieces क्या है? They are sediments. अभी ये sediments क्या होता है? These sediments are transported, deposited by wind, water, etc. ये जो sediments हैं, छोटे छोटे रॉक पीसेस है ना, तो कभी कभी बहुत तेज आंधी चली, नदी कोई आ रही है, देयर इज हेवी रेन्स. सो व्हाट हैपेंस, दीज स्मॉल रॉक पीसेस दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर प्लेस. यस, दीज आर वेरी स्मॉल रॉक पीसेस. नहीं, कितनी बार आप देखो, हवा के साथ थोड़े छोटे पत्थर भी आ जाते हैं, बहुत सारे कंकड़ भी होते हैं. सो दीज स्मॉल रॉक पीसेस that are transferred, the small particles that are transferred from one place to the other place are called as sediments. फिर क्या होता है, रॉक पीसेस है ना, these sediments are transported and deposited by wind, water, etc. and loose sediments क्या होता है, compress हो जाते हैं, hard हो जाते हैं, and they form layer of rocks. Different layers are formed. And this type of rocks are called sedimentary. जैसे sandstone made from grains of sand. या बालू, आपको पता है ना, ये जो ग्रेन्स है सैंड के, छोटे छोटे पीसेस. सैंड तो छोटा है ना, बट these rocks may also contain, इसमें क्या क्या होता है पता है, fossil of plants, animals and other microorganisms that once lived on them. अभी ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग. अभी मैं आपको कहानी बताती हूँ, ठीक है. कि सपोज एक बहुत बड़ा सा घना सा जंगल है. गॉट इट. उस जंगल में छोटी छोटी गुफा बनी हुई है. गुफा आप समझते हो, या केव्स. सो मेनी एनिमल्स वेयर लिविंग इन दीज केव्स. सडनली व्हाट हैपेंड, एक बारी बहुत तेज बाढ़ आ गई, एंड हेवीली. बारिश भी हो रही थी, बाढ़ भी आ गई. एज अ रिजल्ट व्हाट हैपेंड, बहुत सारे जानवर जो है ना वो मर गए. जानवर मर गए तो वो पानी, they the water. So when they have moved with the water, तो द रॉक्स, बाद में जब पानी सूख गया, पानी गल गया, पानी, द वाटर ड्राइज अप, देन ये जो लैंड था, दे ऑन दिस लैंड क्रस्ट दे फॉर्म एज फॉसिल. ठीक है. तो दे आर फॉर्मिंग स्मॉल fossils. You understand fossil fuel, na? Petrol and all, these all are formed from fossils. Sorry children. Now what happened, we have studied about two types of rocks. We have read about igneous and we have read about sedimentary. Now third type of rock कौन सा बचा हुआ है? Yes children, very good, metamorphic rocks. ये कैसे बनते हैं? How are metamorphic rocks formed? क्या होता है, बहुत गर्मी पड़ती है, अंडर ग्रेट हीट एंड प्रेशर. 2.3 फिगर देखना पड़ेगा बेटा. हियर इज 2.3. जस्ट सी. नाउ फॉसिल मीनिंग इज गिवन हियर. अच्छा, ये सारे ऑल दीज वर्ड मीनिंग्स ना चिल्ड्रन, यू हैव टू रिमेंबर एंड प्लीज राइट इट डाउन इन योर नोटबुक्स. गॉट इट? राइट इन नोटबुक्स. स्नैप होमवर्क पे तो मैं दूंगी बेटा, लेकिन अभी क्या है, you have to post all your work on the mail. So just do these homeworks and click it and send it on my mail. Write in notebook.
ठीक है। तो igneous means fire, ignis meaning fire, sedimentary Latin word meaning sedimentum meaning settling down, and metamorphic Greek word means metamorphos meaning change of form. When igneous and sedimentary change their form, मतलब igneous तो वेरी हार्ड रॉक, एकदम अंदर से सीधे मॉल्टेन लावा निकलता है, उसका रॉक बन गया है। एंड सेडिमेंटरी छोटे छोटे रॉक पीसेस ऑल ओवर द पूरे जगह पे फैल गए हैं। गॉट इट? दैट इज मेटामॉर्फिक, दैट इज सेडिमेंटरी। जब igneous and sedimentary change their forms, then it is called as metamorphic. Same thing, meaning of fossil, children, remains of dead plants and animals trapped in the layer of rocks. ठीक है, इसी पत्थर के नीचे दब के अगर इंसान कोई कोई जानवर हैं, प्लांट्स हैं जो मर गए हैं, तो हम उसको क्या कहते हैं? वी कॉल देम एज फॉसिल। फिर आप ये देखो बेटा, यहाँ पिक्चर इज गिवन, ये देखो, जस्ट सी दिस पिक्चर, फिगर 2.3, सेडिमेंटरी रॉक टर्न इनटू मेटामॉर्फिक। हुआ रॉक है ये, ग्रेजुअली एंड स्लोली व्हाट हैपेंस, इट चेंजेस इनटू मेटामॉर्फिक रॉक्स। अब जैसे जस्ट सी, मट्टी जो है, क्ले changes into slate and limestone changes into marble. Got it? Clay that is there, मिट्टी जो है, it changes into slate. slate वही जिस ब्लैक कलर का होता है, आप चौक से लिखते हैं। So clay changes into slate and limestone into marble. Marble तो देखो आपके घर में इतना सारा marble है, and lot of marble is found in Rajasthan. Rajasthan में you find lot of marbles. Got it? So these are some of the forms of rocks that we have studied. Rocks का क्या काम होता है बेटा? Very useful to us, you know it very well. Rocks very useful. Hard rocks के उससे हम क्या करते हैं? रोड्स बनाते हैं, हाउस बनाते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं, ठीक है। एंड टू यूज स्टोन, बहुत सारे गेम्स में आप स्टोन यूज करते हो। अरे पिट्ठू खेला है? पिट्ठू 7 स्टोन्स रख के, और एक 2 ग्रुप होते हैं, फिर एक ग्रुप जो है उसको तोड़ता है, वो सारे जो वो एक के ऊपर एक गिट्टी रखते हैं, फिर वो गिट्टी को जब आप तोड़ देते हो, फिर उस गिट्टी को वापस से 7 सजाना पड़ता है। पिट्ठू खेला होगा आपने। फिर स्टापू खेला, स्टापू किट 5 स्टोन्स। गिट्टी खेली है कभी? गिट्टी आती है? मुझे तो आती है, आई हैव प्लेड इन माई स्कूल डेज ना, आई यूज टू प्ले, गर्ल्स ऑलवेज यूज प्ले गिट्टी। और अपने दादा नाना होंगी घर पे, नानी वानी होंगी, उनसे आप पूछना उन्होंने कभी इस तरह का कोई गेम खेला है कि नहीं खेला है, ठीक है। कहता है बच्चों, हमेशा यू आर बिजी इन दिस स्कूल, यू कीप ऑन स्टडिंग, डूइंग होमवर्क, और आपको टाइम नहीं मिलता है दादी नानी से बात करने का। दिस इज़ द राइट टाइम। यू आर विद योर ग्रैंड पेरेंट्स, दादी से बात कीजिए, नानी है तो नानी से बात कीजिए। whichever grandparents are there at home, please respect them and love them, and please take care of them and take care of yourselves as well. Okay children, this is a very tough time, so in this tough time you really need to brush up, and you really need to take care of yourselves, isn't it? Now what happens, you really need to do it. Very nice activities given here children. Collect pictures of some monuments, and कौन से कलर्स, कौन कौन से ये यूज़ हुए हैं, वो आप जो है, ये कौन कौन सा मॉन्यूमेंट्स कौन सा है बेटा? हाँ, रेड फोर्ट, रेड सैंडस्टोन, ताजमहल इज मेड ऑफ वाइट मार्बल, 2 ऑफ द वेरी ब्यूटिफुल थिंग्स। दिल्ली तो जो लोग गए होंगे, यू माइट हैव डेफिनेटली विजिटेड लाल किला, फोर्ट। यू डिड नॉट विजिट, प्लीज व्हेनेवर यू गो टू दिल्ली, अब तो देखो पता नहीं कब जाना हो पाएगा, प्लीज़ विजिट रेड फोर्ट। और अगर आगरा जाएंगे
do take out some time to visit the Taj Mahal. So you will be surprised to अभी क्या ये surprise है children, we will be doing it in the next class. आपके पास book है तो आप पढ़ना. I'll be starting from here in the next class. Okay children, thank you so much children, and God bless you all.